جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع صدور اور وعلیکم السلام. پریزیڈنٹ سیکریٹریز کے لیے جو ہمارا سیشن چل رہا ہے یہ دوسرا اسپیل ہے. ہم اس میں آپ سب کا خوش آمدید کرتے ہیں. آج کے ہمارے سیشن کا آغاز اسٹیٹ پرنٹ میڈیا سیکریٹری محمد معین الدین صاحب سے کی تذکیر سے ہوگا. میں معین الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تذکیر 5 منٹ کے لیے اپنا مائک انمیوٹ کر لے. سر محمد معین الدین صاحب, ظہیر آباد, اسٹیٹ پرنٹ میڈیا سیکریٹری. اور سارے پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک میوٹ رکھ لیں. معین صاحب ارشاد کیجیے سر. جی صلی اللہ رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقول رب زدنی علما. صدق اللہ العلی العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما. صدق رسول الکریم. محترم صدر اجلاس, جو ذمہ داران احتاب, جو شرکا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارے اجلاس کے اندر مجھے تذکیر قرآن کے لیے حکم دیا گیا ہے. میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے ایک چھوٹے سے آیت کا ٹکڑا, جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اور کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم اور عقل کی دو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ علم کی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا کے اندر سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہی کے ذریعے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تھی, جو سورہ علق میں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اس کے بعد والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور تحریر کی جو وہ لکھتے ہیں. پھر اور ایک نہیں وہی کے اندر اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. ان تین وحیوں نے اسلام کی تعلیمی تحریک کا آغاز کیا. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایٹا جو تنظیم ہے جو علم کے علمبرداروں کے ساتھ میں ہم معلمین حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ تعلیم و تدریس ایک مقدس پیشہ ہے اور یہ محترم پیشہ ہے, اور اس کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی کے ساتھ ہم بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس طرح ہے کہ بڑے شرف حاصل کیے ہوئے ہیں, تو یہ بڑا وہ اساتذہ حاصل ہے. اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اساتذہ ہیں سماج سدھار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو وہ نیشنل بلڈر کے حق سے اپنے طلباء کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, یا اس سماج کے اندر کوئی حیثیت ان کی نہیں ہوتی, یقیناً وہ نیشنل کلر ہو سکتے ہیں. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم الشان تحریک اور تنظیم جو ملک گیر سطح پر تحریک ہے اس سے ہمیں جوڑا ہے. یہ بڑا فضل و کرم ہے. تو عزیز اساتذہ کرام, اللہ علم کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے, اور ہم بھی
اس پر گامزن ہیں۔ تو علم کی فضیلت سے متعلق یہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو علم والے اور بے علم کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو علم کا فہم دیتا ہے یا دین کا فہم دیتا ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس کڑی کے ایک سلسلے کو اپنائے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا کام بھی بہت اونچا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہم جہاں معلمی کے پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وارث انبیاء کا پیشہ ہے، معلمی وارث انبیاء ہیں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس نہج پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ عبادت تعلیم عبادت کی طرح یہ قائم ہے اور سب کے لیے قابل قبول کام وہی ہو سکتا ہے جو پسندیدہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو ہم بھی اپنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم کی حیثیت سے تعارف کروا کر ہماری عزت افزائی کی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے فرض منصبی کو ایک ملازم کی طرح نہیں بلکہ ایک معلم کی طرح انجام دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات یہاں ہے کہ اگر کوئی انقلاب برپا ہوا ہے تو وہ شخصیتیں اساتذہ کی ہی ہو سکتی ہیں۔ ہر دور میں اساتذہ نے ہی اپنا لوہا منوایا ہے اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ اساتذہ ہی سماج کے ایک بنانے والے اور سماج کو سدھارنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو طلباء کو ہم علم دے رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ تربیت نہ ہو تو یہ جو علم ہے وہ ایک ننگی تلوار کی طرح ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری کا احساس ہمیں یہ ہونا ہے کہ سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اس وقت تک اپنے پاؤں کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ پہلا یہ ہے کہ اس نے عمر کس چیزوں میں ختم کی، جوانی کہاں پر کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو علم والے اور بے علم دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا علم ہم کو اللہ نے دیا ہے ہم کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پیش کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی میں دہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں جو علم نہیں رکھتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی خسارے اور نقصان میں ہیں جو علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی خسارے اور نقصان میں ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں لیکن خوف خدا نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں وہ لوگ جو علم بھی رکھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں خوف خدا بھی رکھتے ہیں لیکن اخلاص نہیں رکھتے۔ ان تمام ہم کس زمرے میں شامل ہے کیونکہ ہم داعی امت ہے اور ظہیری ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیشے سے ہمیں وابستہ کیا ہے ہمیں انصاف کے علمبردار بنتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو انجام دینا ہے۔ اور اسی نہج پر آئٹا ہمارے اپنے اساتذہ کو تربیت کے پروگرام چلاتی ہے اور آئٹا کے اساتذہ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ اور آخری میں یہ بات آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے لیے اور اپنے طلباء کے لیے ایک اچھے کام کو انجام دینے کے لیے بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کیونکہ اساتذہ اس کے امین ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے اپنے اس منصب کو جہاں تک ہو سکے اچھی طریقے سے انجام دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر جب علم کی بات آتی ہے، علم کے لیے ہم جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے آخری میں، علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان ہی رہا۔ ہمارا یہ حال خدا نہ خواستہ ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اے اللہ جو کچھ ہم اس پیشے سے وابستہ ہوئے ہیں ہم کو اخلاص سے خوف خدا کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے تحت چلانے اور اپنے آپ کو سرخرو ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سولیم سر بہت بہت شکریہ معین الدین صاحب. یہ معین الدین صاحب تھے اسٹیٹ پرنٹ میڈیا سیکرٹری ظہیر آباد سے. میں اب اس کے بعد ہمارے سمپوزیم کے جو شرکا ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں. میں پہلا ٹاپک ہمارا اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اساتذہ کا رول. میں آصف آباد کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محمد نذیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اس پر مخاطب کریں. سر اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اساتذہ کا رول. نذیر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے نذیر بھائی؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. ذمہ داران ITR سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے ITR کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آن لائن لیکچرز کے ذریعے، سمپوزیم کے ذریعے بہترین پروگرام سے اساتذہ کی تربیت کے لیے، طلباء و طالبات کی تربیت کے لیے وہ پیش کر رہی ہے. اس کے لیے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب رہا سوال ناچیز کو یہ جو ٹاپک دیا گیا تھا کہ اسلام کے اندر پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں جو لوگ محسوس کرتے ہیں جب حالانکہ غلط فہمیاں نہیں ہیں، اس کے ازالے کے لیے اساتذہ کیا کام انجام دے سکتے ہیں. تو میں یہ اس ٹاپک کے تحت بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام ایک صاف اور شفاف مذہب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا کوئی غلط فہمی نہیں ہے، جبکہ کفار کو یا مشرکین کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اندر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. اسلام ایک زور اور زبردستی سے پھیلا ہوا مذہب ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے، مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے، مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے اور مسلمانوں کی تعلیمات کی وجہ سے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ چوک در چوک اس مذہب کے اندر آتے رہے اور اسلام ترقی کرتا رہا. اور ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ بات بالکل ہی غلط ہے. یہ اور بات ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر آج بہت سے اسلام دشمن عناصر ایسے ہو چکے ہیں جو کبھی بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور بہت سے نئے سوچے اسلام کے تعلق سے اس دنیا کے اندر اٹھائے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین آزادی ہے وہ بھی اسلام کے اوپر بہت زیادہ پابند تھے. مثال کے طور پر سراج الدولہ ہے، علاء الدین خلجی ہے، اورنگزیب ہے. یہ ایسی شخصیات تھی جنہوں نے حکومتیں کی تو سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق انہوں نے حکومتیں کی، جبکہ ان کی شبیہ کو کیا کیا جاتا ہے بالکل ہی بڑھا کر اور بالکل ہی گھٹیا طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زور اور زبردستی سے اسلام کو پھیلایا. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام پھیلا ہے، اور جب کبھی بھی اسلام کے اوپر، ہندوستان کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا تو یہی وہ حکمران تھے. علاء الدین خلجی نے کئی مرتبہ اپنے حملوں کے ذریعے کیا کیا، منگولوں کے حملے کو روکا. نہیں تو آج
दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का नामो निशान ही नहीं रहता था। उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी एक फिल्म बनकर भी रिलीज हो चुकी है, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। यकीनन ये भी इस्लाम की छवि को बदनाम करने के लिए तैयार की गई फिल्म है। अभी रिलीज नहीं हुई, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अगर वो रिलीज हो गई तो नए नए शोशे यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि तारीख के अंदर कई वाकयात ऐसे गुजरे हैं कि इस्लाम अपने हुस्न अखलाक से फैला, अपनी तालीमात से फैला, अपने किरदार से फैला। मैं एक छोटा सा एक वाकया आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान करते चलूं कि समरकंद जो एक मुकाम था, वहां से बहुत लंबा तफील फासला तय करता हुआ एक कासिद दिमश्क में तशरीफ लाया। उसके पास समरकंद के पादरी का एक लेटर था और लेटर के अंदर, उस खत के अंदर ये तहरीर किया गया था कि मुसलमान जब कभी भी कोई मुल्क के ऊपर हमला करना है या कुछ अगर जंग करना है तो पहले दीन की दावत देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दावत को अगर कबूल नहीं किया जाए तो जजिया क्या करते हैं, लेते हैं। और जजिया भी अगर नहीं दिया जाए तो उसके ऊपर हमला करके उसको मगलूब कर दिया करते हैं, महकूम बना लिया करते हैं। ये शिकायत थी कि समरकंद के जो हाकिम थे, जो सिपह सालार थे, खतीब बिन मुस्लिम, उन्होंने समरकंद के उस वक्त के मुशरिकीन को ना ही कोई दावत दी थी, ना ही जजिया का मुतालिबा किया था और ना ही कोई उनसे और मुतालिबा किया था, बल्कि डायरेक्ट उनके ऊपर हमला करके पूरे समरकंद के ऊपर कब्जा किया गया था। तो बहरहाल ये एक शिकायत थी। समरकंद के पादरी ने क्या किया था, उमर बिन अब्दुल अजीज को रवाना किया था इस खत की शक्ल में। तो कासिद जब दिमश्क के अंदर दाखिल हुआ तो पता पूछते पूछते कि हाकिम वक्त बादशाह या शहंशाह का मकान कौन सा है, तो लोगों ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान बता दिया। तो क्या देखता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही फटे और पुराने कपड़ों के अंदर दीवार को सीढ़ी लगाए हुए अपने छत के ऊपर लीप लगा रहे हैं और उनकी जो अहलिया है वो गारा बनाकर नीचे से दे रही है। बहरहाल कासिद जो आया था उल्टे पांव वो क्या करा, चले गया, वापस चले गया और लोगों से बोला कि मैंने आपको शहंशाह का एड्रेस पूछा था, पता पूछा था, लेकिन यहाँ तो वो एक ऐसा आदमी वहां पर है कि जिसके घर की छत खुद बराबर नहीं है, वो फटे और पुराने कपड़े में अपने घर की लीप लगा रहा है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वही क्या है, शहंशाह वक्त है और वही आपकी शिकायत सुन सकते हैं। तो फिर वो दोबारा क्या किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास गया। जाने के बाद क्या, वहां पर जो पादरी ने उसको लेटर दिया था, खत दिया था, वो लेटर उसके हवाले किया कि उसमें ये जो लिखा गया था कि ना ही जजिया का मुतालिबा किया गया, ना ही दीन की दावत दी गई, बल्कि समरकंद के ऊपर खतीब बिन मुस्लिम ने अचानक हमला करके कब्जा कर लिया है, बोलकर शिकायत की गई है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी लिफाफे के अंदर, उसी लेटर के अंदर क्या किया, वो एक तहरीर किया कि फौरन क्या किया जाए, समरकंद के अंदर एक काजी का तकर्रुर किया जाए और उसके बाद उस मुकदमे को काजी के सामने पेश किया जाए। अपनी मुहर लगाकर उसने क्या किया, वो कासिद को वापस कर दिया। बहरहाल कासिद समरकंद को वापस आया। वापस आने के बाद उसने क्या किया, वो लेटर सबसे पहले उस वहां के पादरी को दिया जिसने लेटर भिजाया था। तो पादरी ने लेटर देख करके कहा कि इस लेटर से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है कि हम जिस तरीके से गुलाम बनाए गए हैं, महकूम हो गए हैं, ये वैसे ही रहेंगे। फिर भी उस पादरी ने क्या किया, एक वहां के सिपा सालार के पास ले आकर, हाकिम वक्त के पास ले आकर वो लेटर दिया। तो फौरन समरकंद के हाकिम ने क्या किया, एक काजी का तकर्रुर किया। काजी का तकर्रुर करने के बाद दूसरे दिन काजी ने क्या किया, पूरे दरबार को बुलवाया। दरबार को बुलवाने के बाद वहां पर दरबार जब लगाया गया तो उसने सबसे पहले खतीब बिन मुस्लिम, जो मुस्लिम सिपह सालार था, उसकी शिकायत की और उसकी शिकायत उसके जबानी सुना के क्या मामला है। तो उसने कहा कि मामला तो बिल्कुल सही है कि हमने क्या किया, मौका नहीं दिया। जंग के अंदर बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि हमको अचानक हमला करना पड़ता है। समरकंद सबसे शादाब इलाका है, हमने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो
قاضی نے کہا کیا تم اس جرم کو قبول کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھایا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو فوراً قاضی نے کہا کہ اب تمہاری اس بات کو سننے کے بعد کوئی مقدمہ نہیں رہ جاتا. قاضی نے فوراً حکم دیا کہ فوراً سمرقند کے اندر سے تمام مسلم حکمران، مسلم فوج، مسلم سپہ سالار اور مسلم فیملیز جو ہے بغیر کسی سرحد کو ہاتھ لگائے وہ سمرقند کو خالی کر کے چلے جائیں. تو پادری جو یہ فیصلہ سن رہا تھا وہ تعجب ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ایک ذرا سے لیٹر کے اوپر یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسی کیا ہے. تو اسلام کی تعلیمات ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے تو خالی لیٹر کے اوپر اتنا بڑا اس فیصلے میں کوئی گمان ہی نہیں تھا. تو شام ہوتے ہوتے سمرقند کے اندر سے پوری فوج، پوری سپہ سالار اور پورے عوام، بال بچے پورے جا چکے تھے. جانے کے بعد فوراً پادری نے کیا کیا، اپنے بڑے بڑے ہم نواؤں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور پھر اسی فاصلے کا ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کے اس فیصلے سے کیا ہم متفق ہے، آپ کے ہمارے حکم ہے، ہم آپ سے اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ کے ہی کیا بولے تو رعایا بن کر رہنا پسند کرتے. تو یہ تھی اسلام کی تعلیمات اور یہ تھی اسلام کا حسن اخلاق. دیکھتے ہی دیکھتے پورا سمرقند بشر پہ اسلام ہو گیا اور بہت سے حاکم وقت پریشان ہو گئے کہ ایک لیٹر کے اوپر، ایک حاکم کے ایک مہر کے اوپر. وقت ہو چکا ہے سر، وقت ہو چکا ہے سر. میں اس واقعے کے بعد اور بہت سے کیا واقعات تھے. میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ ہمارا جو اساتذہ کا اس کے اندر رول ہے، اساتذہ کا جو کردار ہے، وہ اساتذہ کا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے دوران تدریس کے درمیان میں کلاس روم کے اندر بچوں کے سامنے کبھی بھی جس وقت فیسٹیول ہوتے ہیں، اس وقت 15 اگست ہونے دو، 26 جنوری ہونے دو، چلڈرنس ڈے ہونے دو، اپنے اساتذہ کا یہ فرض ہے کہ اپنے صحابہ کے کردار کو، اپنے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کے اوصاف کو بیان کیا جائے. اور جب تک کیا بولے تو اساتذہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم بچوں کو تلقین کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، بچوں کو تلقین نہیں کر سکتے. تو میری تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ تمام کے اسلام کے اندر جو کچھ بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے وہ صحابہ کے اور کیا بولے تو بہت سے صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیشہ جب کبھی بھی موقع ملے کلاس روم کے اندر، اسکول کے فنکشنز کے اندر ان غلطیوں کو اجاگر کرنے کی، اس کے اندر طلباء کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی، اسلام سے روشناس ہونے کی ہم کو تلقین کرنا چاہیے. تو یہ ہم کو کیا کر سکتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے سماجی معاشرہ ہمارا عمل میں آ سکتا ہے. ہر موقع کے اوپر بچوں کے اندر مورل ایکٹیویٹیز، اخلاقی ذمہ داری پیدا کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے. اور میں یہاں پر آخر میں یہ بھی کہوں کہ ہم اپنے اساتذہ کو ایک بہت ہی اہم فکر ہے اس فکر کو کیا کرنا ہے. ہلو سر، السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے سر؟ ارے اکبر صاحب آ رہی ہے آواز؟ ہاں سر جی جی، یہ ہمارے نذیر احمد صاحب سے ہے، کے بی آصف آباد سے. میں اب ہمارے دوسرے مقرر محترم عطیہ خانم صاحبہ لیڈی کنوینر میدک ڈسٹرکٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیمی اور اخلاقی ماحول پیدا کرنے میں اساتذہ کا کردار اس عنوان پر مجھے مخاطب کریں. میں میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک ایکٹیویٹ کر لیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیٹ فارم پر موجود تمام قابل احترام آئٹا فیملی ممبرز کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی مغفرت فرمائے، رحم و عافیت فرمائے، آپ سب کے علم میں اضافہ کرے اور بہترین رزق عطا فرمائے، آمین. مجھے دیا گیا عنوان
تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیمی و اخلاقی ماحول پیدا کرنے میں اساتذہ کا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے اور نبیوں والے کام یعنی دین اور علم کی اشاعت کے لیے ہمیں چنا، اس بہترین منصب سے نوازے کہ ہم نہ صرف حلال کما سکیں بلکہ نونہالان قوم کی دینی، اخلاقی اور علمی تربیت کر سکیں۔ ہم آج بھی ناکام ہیں اولیاء طلباء کو منانے میں کہ وہ اپنے نونہالوں کا داخلہ سرکاری مدارس میں کروائیں اور مادری زبان ان کی ذریعے تعلیم ہو۔ تعلیمی اداروں کا سٹینڈرڈ بھی معنی رکھتا ہے۔ وی ٹیچرز کے ذریعے اساتذہ کی کمی تو پوری ہو گئی ہے، لیکن تعلیمی معیار ابھی بڑھانا ہے۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز کا معیار بہتر ہو جائے تو اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکیں، تو اب اپنی پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اسکول کا سٹینڈرڈ ڈیولپ کریں۔ ہماری قوم و ملت صرف دو باتوں پر عمل کر کے آگے بڑھ سکتی ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع کریں اور دوسری بات بہترین تعلیم کے ذریعے۔ اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی کمی ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان میں مسلمانی کردار کمزور ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو اعلیٰ تعلیم سے دور ہے۔ مذہب کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا اور سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیمی و اخلاقی ماحول پیدا کرنے میں ہم بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اساتذہ اپنے پروفیشنل سٹریس کو قابو میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ طلباء میں بہترین عادتوں کو فروغ دینا، طلباء کو مثبت برتاؤ پازیٹیو بیہیویئر کی طرف راغب کرنا، اچھی زبان کا استعمال کرنا سکھانا، اخلاقی رجحان کو اپنانے کے لیے صلاحیت طلباء میں پیدا کرتے ہوئے ان کے ورچوئل سٹینڈرڈز کو بڑھا سکتے ہیں۔ سماجی خدمت، کمیونٹی سروس بھی ایسا ذریعہ ہے جس سے طلباء میں گڈ ہیبٹس کو فروغ ملتا ہے۔ ہم کئی دہوں سے ان ٹیکنیکس پر کام کر رہے ہیں، پھر بھی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ شاید ہم طلباء کے بنیادی اخلاقی اقدار اور امکانات، پرائمری مورل پراسپیکٹس کو نہیں بدل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر طلباء کی اخلاقی ترقی گھر سے ہی ہوتی ہے، اس پر تعلیم کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کی میچورٹی اور اخلاقی اقدار اس وقت پروان چڑھتے ہیں جب وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ والدین سے، اساتذہ سے، کوچ اور کمیونٹی کے دوسرے لوگوں سے۔ اخلاقی ترقی کا مطلب ایک بہترین رول ماڈل بننا نہیں کہلاتا ہے۔ بہترین اخلاق تو کسی فرد کی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے، انداز گفتگو سے، نرمی سے اور معاملات کو طے کرنے کے انداز سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اچھا استاد اپنے طلباء کی تعلیمی اور اخلاقی ترقی کے لیے طلباء کے پاس موجود اچھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ طلباء کو سکھایا جائے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کس طرح سمجھیں اور اپنی خامیوں کو کس طرح دور کریں۔ طلباء اپنی اخلاقی طاقت، آئیڈیالزم اور جنروسٹی کو کس طرح بڑھائیں۔
पीर ग्रुप की मदद करते हुए भी तुलबा में अखलाकी तरक्की हो सकती है। तुलबा पर असातिज़ा की शख्सियत का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए असातिज़ा तुलबा को न डांटें न झिड़कें, न ही कोई सख्त जुमला कहें, बल्कि शफकत से समझाएं। असातिज़ा की सख्ती तुलबा में बगावत पैदा कर देगी और असातिज़ा की नरमी अखलाक की कुव्वत और आगे बढ़ने का जज्बा और हौसला पैदा करेगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नरमी जिस चीज में होती है उसे जीनत बख्शती है। नरमी जिस चीज में होती है उसे जीनत बख्शती है और सख्ती जिस चीज में होती है उसे ऐबदार बना देती है। हम तलबा में उस वक्त तक अखलाकी तरक्की नहीं ला सकते जब तक के कम्युनिटी में मैच्योरिटी और एथिकल कैपेसिटीज को फरोग नहीं देते। इसलिए हमारा ये काम न सिर्फ स्कूल लेवल बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी होना चाहिए। आदतें मुंतकिल होते हैं पढ़ाने वालों से पढ़ने वालों की तरफ। अगर हम बाकिरदार हैं तो कौम भी बाकिरदार बनेगी। अगर हम किरदार और ज़मीर के बुहरान में मुब्तला होंगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स किसी भी बच्चे को अखलाकी और किरदार के जौहर से माला माल नहीं कर सकते। अगर एक कौम पिछड़ रही है तो हम सबको अपना एहतसाब करना होगा, अपना फर्ज निभाना होगा, वरना उस कौम को अखलाकी ज़वाल से कोई हुकूमत बचा नहीं सकती। इस कायनात के सबसे बड़े मौलिम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके अखलाक, आपके किरदार, सिफात, आदतें, बातें और आपकी हिदायतें दुनिया के लिए मीनारे नूर हैं और मशाले हिदायत हैं। बस कहते हुए खत्म करना चाहती हूँ। मौका देने के लिए शुक्रिया। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। गुज़िश्ता सेशन से आप देख रहे हैं कि 19 जुलाई के जो सेशन हुआ था उसमें हमने तय किया था कि तंजीमी उन्वानात को जो हमारे अफराद व मकासद और ज़ाब्ते अखलाक के इर्द गिर्द घूमते हों उनको तरबियत के लिए, हमारे कैडर की तरबियत के लिए जो ज़िले सुदूर सेक्रेटरीज हैं और उसके अलावा जो लेडी कन्वीनर्स हैं, लेडी जो जिम्मेदार हैं, उनकी तरबियत के लिए और खुद हमारी तरबियत के लिए हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम कामयाबी से हमने इसको मुकम्मल किया है, दूसरा प्रोग्राम ये कामयाबी के मराहिल से गुजर रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि तीसरा सेशन आइंदा आने वाले इतवार के दिन 26 जुलाई संडे के दिन ये सेशन रखा जाएगा, जिसमें कुछ अजला को सेलेक्ट किया गया है, जैसे निजामाबाद है और आपके आदिलाबाद निर्मल है, साथ में संगारेड्डी है और इसके अलावा और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अजगर साहब के पास लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे कि हम कुछ और 5 अजला को नेक्स्ट इतवार के सेशन के दिन हम सेलेक्ट करते हुए इंशाल्लाह सुबह तक जो है तो आपको उन्वानात वगैरह भी दिए जाएंगे और जिले सुदूर या सेक्रेटरीज को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सेशन भी इंशाल्लाह हम इस संडे के दिन रखना चाहते हैं। उसके अलावा हम आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक सिम्पोजियम रखना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जहाँ पर महाराष्ट्र ने उस पर काफ़ी काम किया है, तो वहाँ के सदर मोहतरम जनाब रहीम साहब की इस वक्त तबीयत नासाज है, वो टाइफाइड के मरहले से गुजर रहे हैं। वो और उनके फर्जंद दोनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द उनको जल्दी सेहत आजला कामिला अता फरमाए। तो उनकी सेहत की इत्तला जैसे ही हमको आएगी इंशाल्लाह हम वो सेशन पे रखने जाएंगे, जिसमें यहाँ के तेलंगाना के 3 आपके सिम्पोजियम पे शुरा रहेंगे। तो उनके लिए मैं पहले से ही नाम हम सेलेक्ट किए हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसमें जनाब मोहतरम असगर हुसैन साहब हैं नायब सदर हमारे, दूसरे SRC कन्वीनर जनाब अब्दुल मुजीब साहब हैं, तीसरे स्टेट लेडी कन्वीनर मोहतरमा अस्मा जरीन मैडम हैं। ये तीनों शुरा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ उन्वान हम डिसाइड करेंगे, उसकी तैयारी करते रहें और उसका जो है सो सम अप जो है सो
मोहतरम अब्दुल रहीम साहब, सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र करेंगे। क्या अगर साहब रियायत जी? नेमत सर तो अभी तक नहीं आए सर। नेमत सर है सर? रऊफ भाई, नेमत भाई आए क्या? किसी दूसरे मुखर्रिर को दावत दो अजहर भाई। अगर कोई और मुखर्रिर मौजूद है तो उनको बुला लीजिए आप। जी सर, जी सर। तो मैं अभी तो हमारे पास ये 2 टॉपिक हैं सर। हम सदर साहब की इजाजत से अगर कोई शोरका जो हैं इन टॉपिक पर अगर बोल सकते हैं तो हम उनको 10 मिनट का मौका दे सकते हैं सर। मुमताज साहब, ये 2 जो मुखर्रिर हैं वो लोग भी ज्वाइन होने वाले नहीं है सर। अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है उनके पास। मैं इस वक्त पर मुनासिब समझता हूँ कि सदर मुज़ाकिरा अगर किसी को इजाजत दे तो उनको इजाजत दीजिए। जी सर। जनाब यकीनुद्दीन साहब, क्योंकि वक्त है थोड़ा हमारे पास, तरह ये कैडर के लिए क्योंकि सुबह में हम सर्कुलर भी इशू किए हैं और बाकायदा बातचीत भी है। जनाब अजहरुद्दीन साहब, मीडिया सेक्रेटरी संगारेड्डी और हमारे स्टेट मीडिया सेक्रेटरी जनाब नसीर साहब ने 12 हमारे कैडर से बात करने की कोशिश की। बहरहाल ये तंजीम के हक में तंजीमी तौर पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। मैं एक मरतबा फिर अपने कैडर के रुखा से कहता हूँ कि इस तरीके का जो रवैया है ये मुनासिब नहीं है। ये नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन वाली तंजीम का मामला ऐसा नहीं होता, बल्कि मैंने तो आज अपने सर्कुलर के अंदर ये बात भी कही थी कि अपने जिले सदूर सेक्रेटरीज अपनी हाजिरी से आइंदा जो इस सेशन के बाद टीएस पर शेयर करें कि आपके किन किन अफराद इसके अंदर शिरकत की है और किन किन अफराद ने आपसे पहले ही उज़्र शरई की बुनियाद पर इजाजत दी है। ये तरीका होता है नज़्म ज़ब्त वाली डिसिप्लिन की तहरीक का। तो लिहाजा हम भी एक तहरीक के अफराद हैं, तो लिहाजा ये बात मुनासिब नहीं है कि बहरहाल रऊफ साहब से अदबन गुजारिश है कि नेमत साहब गुज़िश्ता में कुछ उनके खालू वगैरह की तबीयत नासाज थी, लेकिन आज सुबह से उनका फोन नहीं लगा। अगर कुछ उज़्र शरई है तो हमारे सामने आनी चाहिए बात, क्योंकि हाजी सजीउद्दीन साहब ने बात तो वादा हुआ है, आपने इकरार किया है कि मैं जरूर शिरकत करूंगा, लेकिन आज के सेशन में शरीक न होना ये भी हमारे लिए तंजीम के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। तो लिहाजा मैं बहरहाल असगर साहब इसके बाद अगर यकीन साहब इजाजत देते हैं तो कोई शरीक तैयार है तो उनको बुलाइए, वरना हम का मामला आगे बढ़ाएंगे। असगर भाई अगर कोई इनवान है तो 5 मिनट बोल सकता है। जी सर, जी सर, इंशाल्लाह सर। अभी 1 मिनट सर। यकीन साहब, मैं ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट यकीनुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या इस मौजू पर हम किसी पार्टिसिपेंट को दे सकते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, जी सर। तो ये क्योंकि सिंपोजियम है, इसके अंदर बाज़ाब्ता अनवानात दिए गए थे कि स्पीकर्स तैयार हों और उसके ऊपर गुफ्तगू करें। ये कोई इस तरह के मौज़ूआत नहीं है कि इसके ऊपर चलते फिरते गुफ्तगू कर ली जाए, तो ये मुनासिब नहीं है कि किसी को फिलबदी तौर पर ये अनवानात दिए जाए, उनसे गुफ्तगू करवा ली जाए। बहरहाल एक तरह के लैब्स है जो जिससे एटा गुजर रही है, उसी को मैं समझता हूँ ख़त्म करने के लिए इस तरह की कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह एटा तेलंगाना कर रही है। तो जो जिन अनवानात के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है ठीक है, बाकी अनवानात को उठा के रखिए, फिर किसी और मौके पर उसको शामिल करिए, हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं। ठीक है सर। मैं जी इस सेशन के समाप्त के लिए ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट यकीनुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 शरका जो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और अगर वक्त की इजाजत है तो इन 2 और जो टॉपिक्स हैं उस पर भी अगर आप सरसरी क्या चीजें होनी चाहिए थी आप इस सेशन को कंक्लूड करें तो हमारे लिए वाज़े मसरत हो। एक मरतबा टॉपिक्स जो बच गई हैं वो बोलिए असगर साहब। सर, मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल, हमारी जिम्मेदारियां और एक असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों के फरोग़ की अहमियत, इन 2 टॉपिक्स पर 2 शरका ने अपनी रजामंदी तो जाहिर की थी, पर किसी वजह से वो लोग नहीं पहुंचा रहे। जी ठीक है, चलिए मुनासिब है। अभी वक्त कितना है हमारे पास? सर हमारे पास और 20 मिनट है सर। जी ठीक, इंशाअल्लाह। मोहतरम जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब,
सदर आइटा तेलंगाना, तो ब्रदर जनाब मीर मुमताज अली साहब सेक्रेटरी आइटा तेलंगाना, और इस सिंपोजियम को ऑनलाइन जो होस्ट कर रहे हैं मोहतरम असगर हुसैन साहब, नायब सदर आइटा तेलंगाना, और रियासती सतह के मुख्तलिफ जिम्मेदारान जो इस सिंपोजियम के अंदर शरीक हैं, और शुरकाए सिंपोजियम और दीगर असातिज़ा साहिबीन और जिम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, जिसका बुनियादी मकसद असातिज़ा की ज़हनी, फिक्री व फनी तरबियत है, इसी मकसद के पेश नज़र आइटा तेलंगाना ने इस बात का फैसला किया कि असातिज़ा की तरबियत खास तौर पर तंजीमी नुक्ते नज़र से की जाए, और जो जहनी और फिक्री तरबियत के अंदर जो खला पैदा हो गया है उसको पाटने की कोशिश की जाए। तो मैं इस मौके पर तेलंगाना चैप्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे मुल्क के अंदर जहां लॉकडाउन और मायूसी की कैफियत चल रही है, लोग अपनी अपनी सरगर्मियों को ख़त्म करके बैठे हैं, वहीं आइटा तेलंगाना खास तौर पर जनूबी हिंदुस्तान के अंदर मुसलसल ऑनलाइन प्रोग्रामों के ज़रिए से अपने रुक़ा के साथ राब्ता बनाए हुए है और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ इसकी जारी हैं। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद भी देता हूँ और इस मौके पर दुआ गो भी हूँ कि जो जिस जाफिशानी के साथ आप हजरात काम कर रहे हैं, अल्लाह इसके अच्छे असरात मुरत्तिब करे, और जो मकासद की तरफ हम ले जाना चाहते हैं वो मकासद हमें हासिल हो। स्टाफ प्रेजेंटिंग करिए। रिजान ग्रामी, मैंने जैसे पहले कहा कि आइटा का जो बुनियादी मकसद है यही है कि इस उम्मत के जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ हैसियतों से तरबियत की जाए और मुख्तलिफ हैसियतों से उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपने फ़र्ज़ मनसबी को मुकम्मल तौर पर और सही तौर पर अदा कर सकें, जिसके नतीजे के तौर पर इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की टीचिंग कम्युनिटी और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर, इस मुल्क के तालीमी सूरत हाल के अंदर, इस मुल्क की असातिज़ा के किरदार के अंदर एक मुस्बित तब्दीली हम इस मुल्क के अंदर ला सकें। चुनांचे जो उन्वानात आज इस सिंपोजियम के अंदर रखे गए थे, वो उन्वानियात भी लगभग इन्हीं मकासद की तकमील करते हुए नजर आ रहे हैं। दो शुरका ने इस सिंपोजियम के अंदर हिस्सा लिया, और सबसे पहले हमारे मोहतरम नज़ीर साहब के भी आसिफाबाद से उन्होंने सबसे पहले अपने उस उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश की। आपका उन्वान था कि इस्लाम से मुताल्लिक जो गलतफहमियां पाई जाती हैं उसके इजाले के सिलसिले में असातिज़ा का क्या किरदार हो सकता है। चुनांचे आपने कोशिश की कि इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आपने जो बातें कही हैं उसमें एक बात आपने कही कि जो गलतफहमियां पाई जाती हैं असल में वो गलतफहमियां नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम से मुताल्लिक, मुसलमानों से मुताल्लिक, मुसलमानों की तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक, मुसलमानों की तारीख से मुताल्लिक, मुसलमानों के किरदार और रोल से मुताल्लिक गलतफहमियां पाई भी जाती हैं, बल्कि इस गलतफहमियों को, इन गलतफहमियों को बाज़ाब्ता पैदा भी किया जाता है। न सिर्फ पैदा किया जाता है बल्कि उसको इंतहाई मुंज़बित अंदाज में, बहुत सिस्टमेटिक अंदाज में इस मुल्क के अवाम के अंदर, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, इस मुल्क के सोचने और समझने वाले लोगों के अंदर फैलाने का काम भी किया जाता है। ऐसे में यकीनन ये बहुत बड़ा उन्वान भी है कि किस तरह से असातिज़ा जो इस मुल्क के उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदा शख्सियात होते हैं, जो अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी
समाज और कम्युनिटी का क्रीम होते हैं, जो अपनी समाज और सोसाइटी के नुमाइंदा शख्सियात होती हैं, जिन्हें देखकर ये बात तय कर ली जा सकती है कि ये जिस समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो समाज कैसा होगा। तो यकीनन ये बहुत बड़ा रोल है। नज़ीर साहब ने कोशिश की कि इन चीज़ों को सरसरी तौर पर पेश किया जाए। मैं समझता हूँ कि उन्वान को मजीद बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। जो बातें आई हैं वो उसके अंदर तारीख का हवाला भी आपने दिया है और मुख्तलिफ किस्म की फिल्मों की नुमाइश का भी तस्करा आपने किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी यकीनन असातिज़ा को नज़र रखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है और इस तरह के उन्वानात के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की ज़रूरत है। ये और बात है कि ये प्लेटफॉर्म ना हो, कोई और भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इंटरनली इन चीज़ों के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की और ठोस नताइज पर पहुँचने की और कुछ ठोस इक़दामात को तजवीज़ करने की और उस पर अमल करने की मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद दूसरी स्पीकर मोहतरमा अतिया खानम साहिबा, लेडी सेक्रेटरी आइटा मेदक ने अपने उन्वान पर गुफ्तगू की। बहुत शानदार आपने अपनी बात को रखा, बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात को आपने रखा कि तालीमी इदारों में बेहतर तालीमी और अखलाकी माहौल पैदा करने के सिलसिले में असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए। ये वो बुनियादी नुक्ता है, ये बुनियादी बात है जिसको लेकर आइटा इस मुल्क के अंदर खड़ी हुई है। ये वो बुनियादी क्या कहना चाहिए आपके अहम तरीन नुक्ता है, एक अहम तरीन मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का आइटा का कि वो इस मुल्क के तालीमी माहौल में, इस मुल्क के तालीमी इदारों के अंदर अखलाकी माहौल को पैदा करने की कोशिश करे कि ये इसके मकासद के अंदर बहुत अहम तरीन मकासद का एक हिस्सा है। तो आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही मुंज़बित अंदाज में, बहुत सिस्टमेटिक अंदाज में आपने इसको पेश किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरमा अतिया खानम साहिबा को और दुआ करता हूँ कि आपकी सलाहियतों की तरफ मज़ीद इजाफा हो और आप एक बेहतरीन स्पीकर की हैसियत से उभरें। तो आपने बहुत सारी बातें अपने गुफ्तगू के अंदर की हैं कि तलबा के अंदर बेहतर अखलाकी माहौल पैदा करने के लिए हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, उसका मशवरा आपने दिया। बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया। आपने कहा कि तलबा में बेहतरीन आदतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है, उनके अंदर मुस्बित बर्ताव और अच्छी बातों को इस्तेमाल करने के सिखाने का जो काम है वो होना चाहिए। समाजी खिदमत जो हम कर रहे हैं वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो अप टू दी मार्क नहीं है। उसके ऊपर भी आपने बहुत तफसीली अंदाज से गुफ्तगू करने की कोशिश की। और जो सबसे बहुत अच्छी बात मुझे लगी अतिया खानम साहिबा की, वो बहुत शानदार एक जो बात थी वो ये थी कि अखलाकी तरक्की का मतलब कोई बेहतरीन रोल मॉडल बनना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जो हमारे मामलात हैं उसमें हमारी अखलाकी तरबियत का झलकना जरूरी। ये बहुत अहम नुक्ता है, जो पॉइंट है जो अतिया खानम साहिबा ने उठाया है कि अखलाकी माहौल बनाने के सिलसिले में ये गुफ्तगू, ये तकरीरें, ये वाज़ और नसीहत का अपनी जगह असर हो सकता है, लेकिन तब तक ये काम सही तौर पर नहीं हो सकेगा जब तक कि हमारे रोजमर्रा के मामलात के अंदर ये अखलाकी इक़दार न पाए जाते हों, न झलकते। वैसे थे टीचर, वैसे थे मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुल्क के अंदर अखलाकी किरदार को तालीमी माहौल में और तालीमी इदारों के अंदर कायम करने के लिए खड़ी हुई है। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका जो किरदार है, आपका जो रोजमर्रा के मामलात है, आपका जो अटैचमेंट है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ, आपको जो अटैचमेंट है आपके डिपार्टमेंट के साथ, आपको जो अटैचमेंट है आपके स्कूलों और इदारों के साथ, आपका जो अटैचमेंट है तालीमी सरगर्मियों के साथ, वो जाहिर कर देगा, वो बता देगा, ये समझा देगा कि यकीनन आप किस हद तक अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने दावे के अंदर हैं, किस हद तक आप इस बात पर कायम है कि आप तालीमी माहौल के अंदर अखलाकी किरदार को और माहौल को पैदा करना चाहते हैं। तो आपके रोजमर्रा के मामला ही बताते हैं। अगर हम वक्त पर स्कूल को पहुंचने वाले नहीं है, लेकिन हम अखलाक की गुफ्तगू करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आपका मामला खुद सही नहीं है, पहले इसको दुरुस्त कर लीजिए। आपका टीचिंग का मामला सही नहीं है, आप खयानत करते हैं टीचिंग के अंदर, आप खयानत करते हैं ड्यूटीज के अंदर, आप खयानत करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के अंदर।
आप खयानत करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, उसके बाद अगर आप अखलाकी माहौल की बात करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत उम्दा पॉइंट अतिया खानम साहिबा ने उठाया है। और एक बात जो उन्होंने कही बहुत अहम थी, वो ये थी कि कम्युनिटी के अंदर मैच्योरिटी और एथिकल कैपेसिटी मौजूद नहीं है। इसको बढ़ाए बगैर हम कोई बहुत बड़ा गोल नहीं हासिल कर सकते। यकीनन बहुत सही बात आपने कही है, बहुत पते की बात आपने कही है कि प्रॉब्लम यह है कि जिस समाज, जिस सोसाइटी के अंदर हम उठते बैठते हैं, रहते हैं, जिस समाज से हमारा रोजमर्रा का ताल्लुक है, जिस समाज के खुद हम हिस्सा हैं और जिस समाज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जिस समाज से बच्चे हमारे पास आते हैं, टोटली एज ए होल बड़ी दुख और अफसोस की साथ ये बात कहनी पड़ती है। यकीनन हमारी एथिकल जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, खत्म हो गई है, और हमारी मैच्योरिटीज का मामला बड़ा अजीब है। पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल मादा परस्ती की जो कैफियत है हमारे जो आ गई है, इब्नुल वक्ती की जो सिफत है वो हमारे अंदर पैदा हो गई है। नतीजे के तौर पर इन कैपेसिटीज के साथ यकीनन बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है इस उम्मत के अंदर। इस उम्मत की नौनिहालों को, इसके बच्चों को, आने वाले कल के मुस्तकबिल को संवारा जाए, बहुत बड़ा टास्क है। इसी टास्क को लेकर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन इस मुल्क के अंदर खड़ा होना चाहती है। तो वो अहम तरीन टास्क है जो लेके आईटा इस मुल्क के अंदर होती है कि कम से कम आने वाली नस्लों को जो हमारे हाथों से गुजरती हैं उनको जहनी तरबियत, फिक्री तरबियत इनकी इस तरह से कर दी जाए कि ये जो कैपेसिटीज हैं, जो एथिकल कैपेसिटीज की जो बात की गई है, वो इनके अंदर डेवलप हो सके और साथ ही साथ इनकी मैच्योरिटी के अंदर बेहतरी और तब्दीली आए। नतीजे के तौर पर ये मुल्क का बेहतरीन असासा साबित हो सके। दो उन्वानात तो बहरहाल हुए हैं, जैसे अभी होस्ट ने कहा कि और दो उन्वानात बाकी रह गए थे जिसके स्पीकर्स किसी वजह से बहरहाल नहीं पहुंच सके हैं। उसमें एक बहुत अहम तरीन उन्वान है मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियां, और दूसरा जो उन्वान था वो है असातिज़ा की पेशावराना सलाहियतों की अहमियत। अज़ीज़ान गिरामी, ये दो उन्वानात भी बहुत अहम तरीन उन्वानात। हम मौजूदा दौर के अंदर जिसके अंदर हम जी रहे हैं, अभी जो तालीमी सूरत हाल है उससे कौन वाकिफ नहीं है। इसका तालीमी जो सूरत हाल है, तालीमी जो कैफियत हमारी है, तालीमी जो सिचुएशन है, हमारा एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है हमारा, वो बहुत वाज़ेह है। हम एक अरसे से इसके ऊपर गुफ्तगू करते आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि हमारे मुल्क की मौजूदा जो तालीमी सूरत हाल है वो बदले। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, वो तरजीहात बदल गई। तालीम हमारी तरजीह नहीं है, हमारे समाज की तरजीहात के अंदर तालीम शामिल नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात। इसके नतीजे के तौर पर ये कौम, ये उम्मत जो बहुत खाती पीती कौम है, जो बहुत ज्यादा सलीके से, बड़े ढंग से अपने मामला जिंदगी गुजारना चाहती है, बड़े धूमधाम से शादी और ब्याह के काम करना जानती है, बहुत ही क्या कहना चाहिए आपके तश्क को, वो एहतशाम के साथ अपने मामलात को, अपने तकरीबात को, अपनी तफरीहात को, अपनी तामीरात को इस दुनिया के अंदर जो है ना वो पेश करना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि ये उम्मत को असल ये बात जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि हमारी जो तालीमी सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। इस तालीमी सूरत हाल को बदले बगैर, इस तालीमी सूरत हाल को चेंज करे बगैर, इस मुल्क के, उम्मत के एक एक बच्चे को पढ़ाए बगैर, तालीम गाहों तक पहुंचाए बगैर और इनकी तालीमी काबिलियत को, सलाहियतों को परवान चढ़ाए बगैर और इनको क्या कहना चाहिए आपके ऐसे एजेंसियों तक पहुंचाए बगैर जहां पर फैसले होते हैं, ये मुल्क और इस मुल्क की उम्मत कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस बात को समझ लेने की जरूरत है। यही वो बात है जिसको आईटा पेश भी करना चाहती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश करना चाहती है कि लोगों आज भी अगर ये बात नहीं समझेंगे, अपनी तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने की जो सही, जो कोशिश हत्तल मकदूर जो तुम कर सकते हो, अगर वो नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई इम्कान नहीं है इस सूरत हाल को के तब्दील होने का। बहरहाल हमारा काम है आवाज लगाना, हम आवाज लगाते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे। असातिज़ा की हैसियत से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की हैसियत से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को बहरहाल समाज तक पहुंचाने का काम किया जाए। समाज के अंदर औलिया तलबा, पेरेंट्स के जरिए से
हम इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि उनके जहनों के अंदर तब्दीली लाई जाए, तब कहीं जाके मुमकिन है कि हम तालीमी सूरत हाल को बदलने के सिलसिले में अतल मकदूर जो कुछ कर सकते हैं कोशिशें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं, मायूसी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर बहुत ज्यादा सूरत हाल, हमारी यकीनन सूरत हाल बिगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हर कोई अपने अपने तौर पर अपने अपने जगह पर कोशिश कर रहा है कि तालीमी सूरत हाल को बदले, लेकिन इसके अंदर मुंजबित अंदाज से, सिस्टमेटिक अंदाज से काम करने की जरूरत है। इदारों को उठने की जरूरत है। जहां लोग दीन की, समाज की इस्लाह की, इस्लाह माशरा की काम करने का काम लोग कर रहे हैं, वहीं खास तौर पर तालीमी मैदान के अंदर काम करने की जरूरत है। एटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस उन्वान को खास तौर पर आगे बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि दीगर जो उन्वानात हैं उससे ज्यादा बहुत अहम तरीन उन्वान ये है। आज अगर उम्मत का जो शीराज़ा बिखरा हुआ है, उम्मत बेखदरी के दौर से गुजर रही है, उम्मत जिन हालात के साथ गुजर रही है उससे बाहर निकालना है तो तालीमी सूरत हाल को बदलना होगा। जब तक तालीमी सूरत हाल नहीं बदलेगी इस उम्मत की तकदीर बदलने वाली नहीं। फैजान गिरामी, एक और उन्वान रह गया था जिसके ऊपर एक मुखर्रिर बात करने वाले थे, असातिज़ा की पेशा वाराना सलाहियतों की अहमियत की बहुत अहम तरीन उन्वान है। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी से, बहुत संजीदगी के साथ गौर करने की, समझने की जरूरत है। पेशा वाराना सलाहियतों के बगैर कोई काम नहीं होता। पेशा वाराना सलाहियतों के बगैर कोई अहम एक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती। पेशा वाराना सलाहियतों के बगैर कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं लाया जा सकता। फैजान गिरामी, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इस दुनिया का वो वाहिद प्रोफेशन है मेरी नजर में, जो एक ऐसा गोल्डन प्रोफेशन है जिसको इंसानों की तामीर की जिम्मेदारी दी गई है। टीचिंग एक ऐसा वाहिद प्रोफेशन है जिसके जरिए से इंसानों की ज़हनी, फिक्री, फन्नी सलाहियतों को उभार के, उजागर करके इंसानों को तैयार करने का काम दिया गया है। ये बड़ा अहम तरीन काम है, इसके लिए पेशा वाराना सलाहियत की जरूरत है। असातिज़ा की खास तौर पर पेशा वाराना सलाहियत इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बहुत बड़ा टास्क आपके हाथ के अंदर है, तो पूरे इंसानों को बनाने का टास्क आपके हाथ के अंदर है। दीगर जो पेशे हैं वो अपनी जगह इनफरादी हैसियत रखते होंगे, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन जो है, तालीम का जो पेशा है, वो बड़ा गुनागो अहमियत का हामिल पेशा है, बल्कि तमाम पेशों का सरदार है। तमाम पेशे असल इसी पेशे के से निकलते हैं। मैं समझता हूँ बगैर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अगर आप ये काम करने की कोशिश करते हैं तो खुदारा इस तरह के काम को बराह नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सीधे अंदाज में आमतौर पर बात कहता हूँ तो बराह करम अगर आप प्रोफेशनल अंदाज से डेवलप होके, तरक्की हासिल करके, अपनी सलाहियतों को उभार के, उजागर करके अगर ये काम नहीं कर सकते हैं, खुदारा इस पेशे से हट जाइए। खुदारा इस पेशे को बदनाम मत कीजिए। खुदारा इस पेशे के जरिए से फायदे के बजाय नुकसान मत करिए। ये बहुत अहम तरीन पेशा है, इसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं जानता हूं कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने अपने मकासद के अंदर एक मकसद ये भी रखा है कि हम तालीमी फरोग के साथ साथ इस मुल्क के असातिज़ा की पेशा वाराना सलाहियतों को फरोग देने का काम करेंगे, इनकी तरबियत करेंगे, इनको मुख्तलिफ हैसियतों से आगे लाने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन खुसूसन तेलंगाना चैप्टर बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे लेके जा रहा है। प्रोफेशन के बगैर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बगैर टीचिंग का प्रोफेशन मुनासिब नहीं है। कोई और काम किया जा सकता है, बहुत सारे काम इस मुल्क के अंदर हैं जिसके जरिए से इंसान अपनी जरूरियात की तकमील कर सकता है। इस प्रोफेशन के अंदर आप कभी इस बात को तस्लीम करेंगे कि कोई डॉक्टर ऐसा हो जो बगैर किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, उसकी सलाहियतों के, उसको किसी मुकाम पर बिठा दिया जाए और लोगों की क्या कहना चाहिए, आपके इलाज और मुआलजे की जिम्मेदारी उसको सौंपी जाए? ऐसा खतई नहीं हो सकता। हम खुद ये सब जानते बूझते हुए कि एक डॉक्टर के पास प्रोफेशनल कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो प्रोफेशनल इतना स्ट्रांग नहीं है, बेहतर नहीं है, हम अपने बहुत खांसी और बुखार का इलाज कराने के लिए उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों से कहते हैं कि लोगों वो तो मुनासिब डॉक्टर नहीं है, आप मत जाइए। ये इतना बहुत ज्यादा जिंदगी का सवाल है, लोगों की मामला लोगों की जो है ना जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो आप भला बताइए, एक इंसान की जिंदगी को बनाने के सिलसिले में क्या किसी टीचर के हाथ में बच्चों को दे दिया जा सकता है? तो प्रोफेशनली आउट है, तो प्रोफेशनली बिल्कुल आउटडेटेड है, कोई अपडेशन उसके अंदर नहीं है, कोई सलाहियत उसके अंदर नहीं पाई जाती है। जमाना जिस तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहा है उसके साथ दौड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो नहीं जानता है या नहीं जानती है। क्या ऐसे टीचर्स के हाथों में हम अपने बच्चों को ले जाके देना चाहेंगे?
ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے بھی اس طرح سے تیار ہوں جو صرف پڑھنے کے نام پہ جاتے رہیں آتے رہیں لیکن کوئی ڈیولپمنٹ ان کے اندر نہ ہو. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے اپنے طور پر اس سمپوزیم کے اندر موجود تمام اساتذہ کے ذریعے سے میں تمام اساتذہ تک کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئیے اس بات کا عہد کیجیے کہ ہم ٹیچر ہیں اور ایٹا سے وابستہ ہیں, کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارا تعلق ایٹا سے ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کا ڈیولپمنٹ سب سے پہلے کریں گے, اپنے آپ کا کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کریں گے, اپنے آپ کا کیا کہنا چاہیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ لائیں گے. ٹیچنگ کیا کہنا چاہیے آپ کے ہماری جو ایبلٹیز ہیں اس کے اندر بہتر سے بہتر ہم لانے کی کوشش کریں گے. ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. اور یہ زمانہ جو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ گیا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. صورتحال یہ ہے آج اس دنیا کے اندر لوگ انفارمیشن کو ان ہواؤں اور فضاؤں کے اندر پھیلا دیا ہے. ہماری فضاؤں میں ہواؤں میں چاروں طرف انفارمیشن پھیلا ہوا ہے, اس کو کیچ کر کے اس کو طلبہ تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے. یہ کام اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹوٹلی اپنی کمیونٹی کو بھی, اپنے سماج کو اور اپنی امت کو بیکورڈ رکھنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیکورڈنس سے ہم آگے آئیں, بہتری پیدا ہو, ہم بھی زمانے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہم کوشش کر سکیں. تاریخی حوالے نذیر صاحب دے رہے تھے. پھر ایک مرتبہ ہم اگر اپنی تاریخ کو ہم شاندار بنانا چاہتے ہیں, پھر ایک مرتبہ ہمارے حال اور مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, پھر ایک مرتبہ ہم اس دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے, ایک ترقی یافتہ کمیونٹی کی حیثیت سے, ایک ترقی یافتہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رکھنے والی, با کردار با اخلاق کردار رکھنے والی ایک نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رکھنے والی امت کی حیثیت سے اگر اٹھنا چاہتے ہیں, اس دنیا کے اندر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں, اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا کی امامت کے قابل اپنے آپ کو اگر بتانا چاہتے ہیں, آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف خاص طور پر توجہ دیں گے, ہماری اپنی فکری, ذہنی اور فنی تربیت کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں گے, اور ہمارا جو کردار ہے اس کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں جہاں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے تحت ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں, اور اس ملک کے اندر جس کردار کو ادا کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں ہم وہ کردار ادا کرنے کے قابل بن سکیں, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے طلبہ کو, اپنے بچوں کو, اپنے نونہالوں کو, امت کے مستقبل کو بہتر طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سر, بہت بہت شکریہ. میں یقین الدین صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں سر. اب جو ہمارا آنے والا سیشن ہے اتوار کے لیے, اس کے اندر میں 1-2 شرکا کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ٹاپک ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تعلیم کے عنوان پر کے لیے رجک کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری فاضل حسین صاحب رہیں گے 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ, اور سنگاریڈی سے لیڈی کنوینر ڈاکٹر عائشہ میڈم عنوان رہیں گا انشاءاللہ, اور کاماریڈی نظام آباد اور عاقب آباد سے بھی انشاءاللہ ایک جو بھی نام نہ ہوں وہ لوگ اس بات کو یاد رکھ لیں سر. فاضل حسین صاحب تشکیل تعلیم کے لیے 5 منٹ. ہمارا سیشن اتوار کے دن 26 جولائی اور 3:30 کا آغاز ہوگا, اور ہمارے شرکا میں ڈاکٹر عائشہ میڈم رہیں گے انشاءاللہ. ایک عنوان آپ تک پہنچ جائے گا. میں آخر میں سیشن کے اختتام کے لیے کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتام کریں. خالد حسین خیسری صاحب. افضل صاحب انشاءاللہ آئندہ ڈسٹرکٹ پھر دیے جاتے رہیں گے سنڈے کے بعد بھی. ہاں, جو ڈسٹرکٹ چھٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو پھر موقع دیا جائے گا. انشاءاللہ سارے ڈسٹرکٹ کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے 2 سیکشن رہیں گے عید سے پہلے انشاءاللہ. عید کے بعد پھر اگر کچھ ترتیب بدلتی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے سر انشاءاللہ. کسی ڈسٹرکٹ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اگر ہو سکتا ہے سنگاریڈی سے 2 اسپیکر بھی ہوں سنڈے کے دن 3:30 بجے, ہو سکتا ہے سیکرٹری اور لیڈی کنوینر. میں خالد حسین خیسری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کے اختتام اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے کچھ تو کریں سر. 1 منٹ 2 منٹ. خالد حسین خیسری صاحب ہیں.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जज़ाकल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है जी सर, जी सर। आ रही है मगरिब का ख्याल करके। हाँ हाँ 10 मिनट बाकी है। जी अलहमदुलिल्लाह। नहीं सर, 2 मिनट। नहीं 10 मिनट से कहाँ जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल सेशन पहले से अनाउंस था, उसके बावजूद भी जो कुछ मसाइल इस सेशन के दौरान रहे, उम्मीद की जाती है कि आइंदा ऐसे मसाइल न रहेंगे। हमारे शुरका, अल्लाह का फजल है कि आज के सेशन के अंदर शुरू से, यानी इब्तदाई सेशन के इब्तदा होने के बाद जो है बहुत जितने लोगों को शरीक होना था बहुत जल्द शरीक हो गए। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह वक्त का लिहाज रखते हुए हमारे शुरका, हमारे मुकर्रिरीन तमाम ही जो है इस बात का लिहाज रखेंगे कि वो एक बामकसद काम के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और पूरी तरह इन बातों का लिहाज रखेंगे। मैं आइंदा जो उन्वानात दिए जाएंगे, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को शरीक करने की बात की जा रही है, एक मरतबा फिर उनसे ख्वाहिश करता हूं कि ये एक अच्छा मौका है, ये आपकी कारकर्दगी का एक इम्तिहान भी है कि आप जो है चीजों को जो है किस हद तक पकड़बंदी के साथ, यानी उसे जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ आप कबूल करते हैं। किसी बात को भी कबूल करना हो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कबूल करना चाहिए, और जो मुनवानात पहले से तय हैं उनको गैप रखकर जो है प्रोग्राम को बदमजा बनाने के लिए ये जो चीज हुई है ये कोई मुनासिब नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा के इजलास के अंदर हमारे शुरका वक्त पर शरीक होंगे और हमारे मुकर्रिरीन पहले से ही जो वादा कर चुके हैं वो जरूर बजरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ये हमारी तरबियत का एक हिस्सा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो भी प्रोग्राम हम इस वक्त पेश कर रहे हैं ये आने वाले वक्तों के अंदर हमारी तरबियत और हमारे मुनासिब इक़दामात के लिए बहुत मौजू रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम तमाम की मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे खालिद हुसैन खैसरी साहब निजामाबाद से, तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट। मैं सारे शुरका और मुबशिर यकीनुद्दीन साहब और अतिया खानम मैडम साहिबा सबका शुक्रगुजार हूँ, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका भी। मैं इंशाल्लाह फिर हम संडे के दिन 3:30 बजे फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।